الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ وقال الله تبارك وتعالى وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل آذكرين حرم من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ قدر کرنے والوں کے لیے دنیا تو ناقدروں سے بھری ہوئی ہے، پر قدر کرنے والوں کے لیے یہ دن سونے اور چاندی اور ہیرے و جواہرات سے زیادہ قیمتی رکھتے ہیں۔ ناقدروں کی تو پوچھنا کیا ہے، جو جانتا نہیں ہے، جو اس کی اہمیت نہیں رکھتا ہے، وہ تو ایک نارمل آدمی ہے، ان سے بحث نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ قدر جانتے ہیں ان کے لیے یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک سے اس کی کم فضیلت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف صاف اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ علماء کا اکثر طبقہ، اکثر و بیشتر حضرات علماء کرام فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یعنی قربانی کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کے دن تک جو راتیں گزرتی ہے، یہ 10 راتیں وہاں مراد ہے، اور اللہ رب العزت اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جس چیز کے تعلق سے اللہ قسم کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ چیز غیر معمولی نہیں ہے، اب وہ چیز بہت اہم ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ یہ 10 راتیں عام راتوں کی طرح نہیں ہیں، ان 10 راتوں میں نے کچھ رکھا ہے، اس کو لے لو، اس پر عمل کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو کوئی اور دن کسی نیک عمل کرنا اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں اللہ کو محبوب ہے۔ اس کے ذریعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرمانا یہ چاہ رہے کہ اور دنوں میں جو تم نیکی کرو گے، جیسے رمضان المبارک کے موقع پر ایک فرض آپ پڑھیں گے تو 70 فرض کے برابر، ایک نفل پڑھیں گے فرض کے برابر، ایک فرض پڑھیں گے 70 فرض کے برابر، جو اس کے الگ فضائل ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بعد اگر کسی دن کی فضیلت ہے تو یہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے میرے دوستوں، جو ہم اور آپ ابھی گزار رہے ہیں۔ تو اسی لیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث ہے، بعض محدثین نے اس کو تھوڑے سے کمزور حدیث بھی کہا ہے، مگر اتنی بھی کمزور نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشرہ ذی الحجہ کہ راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ شب قدر نہیں ہے یہ،
پر शब कद्र के जैसा है। जैसे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो एक मर्तबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लेता है, एक सुलुस कुरान के बराबर है। एक सुलुस का मतलब 10 पारे। जब 2 मर्तबा पढ़ लिया तो 2 सुलुस, 3 मर्तबा पढ़ लिया तो 3 सुलुस, यानी मुकम्मल कुरान पढ़ने का सवाब उसको मिल जाता है। मगर क्या वो 3 मर्तबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने वाला और मुकम्मल कलाम मजीद की तिलावत करने वाला दोनों बराबर है? दोनों बराबर है। ये जमीन है और वो आसमान है, दोनों बराबर नहीं है न। एक फजीलत बता दी गई, कुल हु अल्लाहु अहद की फजीलत बता दी गई। आई बस ये इतना ज्यादा अहम और फजीलत रखता है बस, तो उसके जैसा है वो नहीं है। तो शबे कद्र के जैसा है, शबे कद्र में इबादत के जैसा है। तो इसका मतलब ये शबे कद्र, ये जो रात गुजर रहे हैं, ये शबे कद्र नहीं है मगर शबे कद्र जैसे हैं। आम रातों की तरह भी नहीं है। इनमें जो फजीलत है वो आम रातों में नहीं है। इन रातों में जो शबे कद्र में जो फजीलत है वो इन रातों में नहीं है। यानी आम रात और शबे कद्र के बीच की रात हो गई है। तो इसीलिए कम अज कम फजर की, ईशा की नमाज जमात से, फजर की नमाज जमात से, और इन दिनों में कम से कम रात को या दिन को कुछ सदकात कर दिया करें। क्योंकि जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत छुपा देते हैं वो कितना है मालूम नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी कोई गिनती मुकर्रर नहीं फरमाई। जैसे शब कद्र की गिनती मुकर्रर कर दी कि इस रात में कोई अगर इबादत करेगा उसको 1000 महीनों का सवाब मिलेगा, लेकिन इसमें कोई गिनती मुकर्रर नहीं है। कितना है ये मेरा रब जानता है, अल्लाह ने इसको छुपा दिया। तो ये हम पर ये जिम्मेदारी बनती है कि इन रातों की कदर करें। सितम जरीफी ये है कि इन रातों के ताल्लुक से लोग हमारे यहाँ जानते भी नहीं है। अरे इन अशरे दिल हिज्जा की रातों के बारे में क्या जाने, वो तो शबे कद्र की रातों के बारे में नहीं जानते हैं। ले दे के जानते हैं तो सिर्फ शबे बारात की रात के बारे में जानते हैं, जब पूरे शहर और पूरी बस्ती में एक हलचल नजर आता है। लेकिन वो चीज ताक रातों में नजर नहीं आता। जब ताक रातों में नजर नहीं आता जो तमाम रातों का बादशाह है, तो फिर आशरे दिल हिज्जा। बात यह है कि हमारे उलमा इकराम ने अपने मिंबरों से उतनी तशहीर नहीं की, उतना ज्यादा बयान नहीं दिया, उतना ज्यादा जोर नहीं दिया, वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई जैसा करना चाहिए था। ये भूल हुई उलमा से। एक रस्मी तौर पर बता देते हैं हाँ अशरा दिल हिज्जा की फजीलत है, यानी दिल हिज्जा के शुरू के 10 रातों की, लेकिन इसके ताल्लुक से एक माहौल क्रिएट करना, एक अहमियत, एक जागरूकता बनाना, इन चीजों की कमी हुई। इंशाअल्लाह यहीं से शुरू हो जाए, यहीं से शुरू हो जाए। और कम से कम आप भी अपने घर वालों को भी, अपने दोस्त अहबाब को भी, अपने पड़ोसी को भी फोन के जरिया, व्हाट्सएप के जरिया, व्हाट्सएप में जो मैसेज आते हैं उसको सेंड करने के जरिया नहीं, खुद लिख कर किसी ऐसे आदमी से जिससे राब्ता मुश्किल हो रहा हो, तो फिर व्हाट्सएप का खुसूसी आप अपने टाइप से मैसेज लिखकर बोले भाई शबे कद्र के जैसी रातें हम पर गुजर रही हैं, आप मेरे बड़े महबूब दोस्त हैं, मैं चाहता हूं कि मैं ये नेकी कर रहा हूं, आप भी ये नेकी करें। ईशा की नमाज कम से कम जमात से पढ़े, फजर की नमाज जमात से पढ़े। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम जो ईशा की नमाज बाजमात पढ़कर सो जाता है, एक रकात भी ना पढ़े, एक सुभान अल्लाह भी ना कहे, ईशा की नमाज बाजमात पढ़कर वो सो गया, फिर उठकर फजर की नमाज बाजमात पढ़ लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूरी रात इबादत का सवाब दे देते हैं। ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। और ये सिर्फ अशरे दिल हिज्जा में नहीं, ये रमज़ानुल मुबारक में नहीं, ये 365 दिनों में है। तो 365 दिनों पर ये अमल करेंगे तो रात सोएंगे, खराटे लेंगे, मजे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो तमाम की तमाम बातें किसमें, बशर्ते कि आदमी गुनाह ना करे, उसमें गुनाह ना करे, नेकी ना करे तो गुनाह भी ना करे ईशा की जमात पढ़कर, तो वो पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको क्या अता फरमाते हैं, इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। तो फिर हम इन मौके का फायदा क्यों नहीं उठाएं? 2 दिन तो गुजर चुके, कम से कम जितने दिन बाकी हैं हम उतने दिन की हम कदर करें। इंशाअल्लाह ईशा की नमाज के बाद हम तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते,
तहज्जुद का जो वक्त शुरू होता है मेरे दोस्तों, वो इशा के बाद शुरू हो जाता है। इशा का वक्त जैसे शुरू होता है वो तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। आप इशा की नमाज पढ़ लें, वित्र के बाद जो 2 रकात नफिल तहज्जुद की नियत से अदा कर लें, तहज्जुद पढ़ लें। हाँ, मगर वो तहज्जुद जो सोकर उठकर पढ़ी जाती है, जो मुशक्कत भरी तहज्जुद होती है, उस तहज्जुद में इस तहज्जुद में बहुत फर्क है। मगर जब कोई चीज पूरी नहीं ले सकते तो पूरी छोड़ भी नहीं सकते। हम वो तहज्जुद पढ़ने की हमारे अंदर सलाहियत नहीं है कि हम उठकर 3 बजे रात में हम तहज्जुद की नमाज पढ़ें। हम में बहुत कमजोरी है और बहुत डेंजर है, उठ भी सकते नहीं भी उठ सकते हैं, वो तो नहीं पढ़ सकते, कम से कम ये तो पढ़ ले। ये छोटी तहज्जुद है, इसको तो हम अदा कर ले, तहज्जुद पढ़ने वालों में शुमार हो जाएंगे। और फिर इन दिनों का एक खास अमल देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना कंसेशन रखा है, कितना ऑफर रखा है। अरे 2 रकात नमाज पढ़कर सो जाओ, तुमको तहज्जुद पढ़ने वालों में शुमार हो जाओगे। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इशा की नमाज पढ़कर पक्की नियत से सोया कि मैं उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, और उसकी आंख लग गई, बेचारा तहज्जुद में नहीं उठ पाया, फजर की जब अजान हुई तब उसकी आंख खुली, उठकर वो अफसोस करता है मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ा। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, उसे तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिल गया, तहज्जुद पढ़ने का अजर उसको मिल गया। शरीयत ने इतना झुकाव दिया है। इसी तरह इन दिनों में बाल और नाखून वगैरह तराशना नहीं है। कुर्बानी का चांद देखकर ये अमल ना फर्ज है और ना वाजिब है, ये मुस्तहब है। अलल खुसूस उसके लिए है जो शख्स कुर्बानी दे रहा हो। मुझे ये बताएं कि आज के दौर में कुर्बानी कौन नहीं दे सकता है भाई? कितना आसान अमल हो गया है, कितना सहल अमल हो गया है। हिस्सा आप ले लें, कम से कम एक कुर्बानी तो करें। कुर्बानी के दिन एक मुसलमान पर गुजर जाए और वो अल्लाह के राह में किसी जानवर की कुर्बानी ना करे, ये तो बहुत अफसोस की बात है। अपनी गुर्बत का, अपने कर्जों का, ना जाने किन किन चीजों का हम बहाना बनाते हैं अल्लाह के लिए। हाँ, सब काम चल रहे, खाना भी चल रहा है, पहनना भी चल रहा है, उड़ना भी चल रहा है, लेन देन भी चल रहे, घर भी बना रहे, सब बना रहे। बल्कि उलमा ने यहां तक का लिखा है, शायद ये मसला आपने नहीं सुना होगा, या मेरे यूट्यूब के एक क्लिप में शायद सुना होगा आप में से, अगर किसी ने देखा होगा तो, या ये मसला नहीं सुना होगा। बाद मर्तबा कर्ज लेकर कुर्बानी करना वाजिब है, पता है आपको? ये अब्दुल्ला मस्जिद ने जब ये पहली मर्तबा बयान किया तो हड़बम मच गया था, ये क्या बात है? आज तक तो हम लोग सुने यार जिस पर कर्जा है वो कुर्बानी है, वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है, कर्ज लेकर भी बाद मर्तबा कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। मगर कैसे? ऐसे कि कुर्बानी वो साहिब इस्तिताअत, और ये आम तौर पर लोअर मिडिल क्लास के लोगों का यही हाल होता है। लोअर मिडिल क्लास के आदमियों का अपने हिंदुस्तान के अक्सर व बेशतर वही हाल रहता है कि कुर्बानी करने की इस्तिताअत है, उसके पास घर बाड़ी सब मिलाकर 612 ग्राम चांदी के बकदर उसके पास पैसा है, मर्द के पास भी औरत के पास भी है। मगर आम तौर पर, औरत की बात नहीं कह रहा हूं, औरत में अभी बाद में आऊंगा मैं, आम तौर पर मर्द के पास जो घर का जिम्मेदार है, बाप है, बड़ा भाई है, जो घर को, संसार को चलाता है, वो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है। तो सारे काम चल रहे, इस्तिताअत भी है, पर कुर्बानी करने के लिए जो कैश पैसा चाहिए वो नहीं है। और आम तौर पर लोअर मिडिल क्लास का यही हाल होता है। कैश जैसे 20,000 रुपये चाहिए मसलन कुर्बानी के लिए, 15,000 रुपये चाहिए, वो कैश पैसा नहीं है। हाँ, रोजमर्रा का खाना पीना ये वो सब गुजर रहा है। लोअर मिडिल क्लास का ये हाल होता है। तो क्या ये आदमी जिसके पास कुर्बानी जिस पर वाजिब है, पर कैश पैसा नहीं है कुर्बानी के दिनों में जिससे वो कर सके, अच्छा बताएं कि अगर इन दिनों में ये शख्स अगर बीमार हो जाए, इन दिनों में अगर इसको शादी ब्याह की जरूरत पड़े या कहीं शादी में जाना हो, पैसा नहीं है, अरे अब्दुल्ला थोड़ा 10,000 अकाउंट में डाल दो, अगला महीना लगा देंगे, पार्टी देगा ना, हम लगा देंगे। थोड़ा बच्ची बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट गए, थोड़ा 50,000 रुपया डाल दो, और वो भी डाल देता है, क्योंकि इनका लेन देन इसको पता है, इसका पैसा फंसा हुआ है, अभी पैसा नहीं है, आएगा भी दे देगा, ये अच्छा आदमी है, जनवान आदमी है।
डाल देता है। होता है कि नहीं, लोअर मिडिल क्लास के आदमी को यही हाल होता है अक्सर बेशतर। अबे 15,000 रुपया डाल तो यार, अकाउंट में अभी है नहीं पैसा, अर्जेंट एक पार्टी को देना है, वो भी डाल देता है। तो ये लेन देन चलता रहता है, दुनिया के हर मामला लेन देन जो है वो कर्जों से लेन देन चलता रहता है उसका, और जिंदगी इसी पर गुजरती रहती है। ये दूसरों को देता भी है, दूसरों से लेता भी है। तो कोई ऐसा आदमी कुर्बानी के दिनों में अगर इस आदमी के पास कुर्बानी करने के लिए पैसा ना हो तो ऐसे आदमी को भी कुर्बानी के लिए फोन घुमाना चाहिए। अरे बाबू थोड़ा 15,000 रुपया भेज दो, एक जानवर खरीदना है, जबा कर देंगे, अगला महीना पार्टी पैसा देगा, दे देंगे। ये है मसला। लोग आ गए थे मेरे हुजरे में, अरे इमाम साहब आपने कैसा बयान कर दिया, बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं कैसा बयान कर दिया, जबकि हमने तो ये मसला पढ़ा। बोले मसला ये है, दूसरा वो शख्स जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उतने सारे माल नहीं है, मगर उसको पता है कि अगर 10-15 हजार रुपया अगर हम कर्ज लेकर भी कुर्बानी कर दे तो हम दे देंगे पैसे, हमारे पास इतनी इस्तिताअत, इतना ट्रांजैक्शन हमारा होता रहता है। तो ऐसे आदमी के लिए भी मुस्तहब है कि कुर्बानी कर ले, कोई गुनाह नहीं है। कर्ज का 2 मसला समझ में आ गया। कर्ज का तीसरा मसला जहां मना है, जहां पर क्या है, मना है। एक वो बंदा जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, पर जो है वो शख्स जो है और कहीं से कर्ज लेकर कुर्बानी अगर करेगा तो कर्ज अदा करना उसके लिए मुश्किल है, जिंदगी बहुत टानाटूनी से चल रही, तो इस बंदे के लिए मना है कि ये बिला वजह कर्ज के जाल में ना फंसे। लेकिन अच्छा ये क्या कुर्बानी करेगा तो अल्लाह इसकी कुर्बानी कबूल नहीं करेंगे? कबूल करेंगे, कुर्बानी हो भी जाएगी, कुर्बानी कबूल भी होगी, पर चूंकि तकलीफ माला युकल्लफ, यानी ऐसी चीज का बोझ अपने ऊपर इसने डाल लिया है जो बोझ अल्लाह ने इस पर नहीं डाला बिला वजह। क्योंकि कर्ज लेना ये मुनासिब बात नहीं है और कर्ज देना ये फर्ज है। तो इसको पता है कि फर्ज एक सुन्नत को अमल, क्योंकि जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो उसके लिए कुर्बानी क्या है, नफिल है। तो एक नफिल अमल को करने के लिए एक फर्ज अमल में कोताही हो सकती है, तो जाकर यहां मना है कि ऐसा आदमी कर्ज लेकर कुर्बानी ना करे। यह है मसला, यह है मसला। तो आप तो समझ गए होंगे, 3 कैटेगरी मैंने बयान कर दिया है, आप किस कैटेगरी में हैं उसके हिसाब से आप अपना मामला कर लें। लेकिन आप ठान लें कि नहीं, मैं अल्लाह के लिए कुर्बानी करूंगा, क्योंकि कुर्बानी ये शाइरुल्लाह है। वलबुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, कुरान में अल्लाह ने कहा इस कुर्बानी के जानवर को हमने तुम्हारे लिए शाइरुल्लाह बनाया है। शायर कहते हैं अलामत, शायर कहते हैं किसी चीज को देखकर ही समझ में आ जाए। यानी कुर्बानी का जब दिन आता है तो लोगों के जहनों में क्या आता है, हाँ एक जानवर को ज़बह करने का एक अमल, ये अल्लाह के शायर में से लकुम फीहा खैर, तुम्हारे लिए इसमें सरासर खैर है, सरासर खैर है। अच्छा, हमारे समाज में एक सुन्नत क्या छुटी हुई पता है? हमारे समाज में माशाअल्लाह अलग खुसूस लॉकडाउन के बाद से कपड़े बांटने वाले बहुत सारे एनजीओ पैदा हो गए, राशन बांटने वाले तो हर गली में पैदा हो गए। राशन बांट रहे, कपड़े बांट रहे, दवाइयां बांट रहे, फ्री मेडिकल कैंप चला रहे, सब चला रहे। अब लग रहा है इसको भी हम ही को शुरू करना पड़ेगा, कम से कम फ्री जानवर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप भी कोई चला दे। फ्री जानवर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, यानी बकरों की एक बड़ी जमात लाई जाए और भाई ले जाओ, भाई कुर्बानी कर रहे हो नहीं, या वो लोग के बारे में मालूम है कि वो कुर्बानी नहीं करेगा, उसके जाकर उसके दुआरी पर जाकर एक बकरा बांध दिए, बोले लो ज़बह करो और खाओ। ये सुन्नत है, ये सहाबा का अमल है। मदीने की जिंदगी में, मदीने के माहौल में, मदीने के माहौल में चंद हाईलाइटेड खुसूसियत थी। एक खुसूसियत ये थी कि जो मालदार किस्म के सहाबा थे, अक्सर तो गरीब थे मदीने के, आमतौर पर ये 10 साल जिंदगी में, लेकिन उनमें जो मालदार किस्म के सहाबा थे, जैसे हजरत उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ और चंद जो सहाबा थे मदीने के अंसार जो सहाबा थे, वो बकरियों की एक रेवड़ लाते और तकसीम फरमा देते थे, ऊंटों की एक रेवड़ लाते और तकसीम फरमा देते थे, लो ज़बह कर लो। हम गोश्त तो बहुत बांटते हैं, लेकिन जिंदा जानवर हम नहीं बांटते।
زندہ جانور بھی بانٹنا یہ صحابہ کی سنت ہے. جب ہم یہ کام کریں گے تو قربانی کا یہ عمل تب یہ بنے گا شعائر اللہ. کیا بنے گا؟ شعائر اللہ. اور یہ عمل سب سے اچھا دیہاتوں میں ہو سکتا ہے. شہر میں تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ایک غریب بیچارہ وہ ذبح نہیں کر پائے, کسائی کہاں سے لائے گا, وہ انتظام کہاں ہے, جگہ کہاں ہے, سب بڑے مسائل ہیں. لیکن دیہاتوں کے لوگ اکثر و بیشتر وقوف ذبح کرنا بھی جانتے ہیں اور ان کے پاس جگہ بھی ہے, سب اویلیبل ہے, چارہ ڈالنے کے سب انتظامات ہیں, جگہ بھی سب اویلیبل ہے. یہ دیہاتوں میں بہت زیادہ ایسی بستی جن کے بارے میں معلوم ہے 300 گھر ہے, 100 گھر ہے, جہاں پر جو ہے صرف 8-10 قربانیاں ہوتی ہے. ایک گائے کی ایک ریوڑ خرید لیا جائے, کوئی آرگنائزیشن ایک گائے کی ایک ریوڑ خریدے اور جا کر ان بستیوں میں بانٹ دے. بھائی اب یہ بستی میں 10 نہیں ہوگا, اب یہ قربانی جو ہے 25-30 ہوگا تاکہ گوشت سب کو ملے الحمدللہ. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ قربانی کے اس دنوں کو ماحول کریٹ کرنا, ماحول بنانا یہ سنت ہے. تو ان دنوں میں سب سے پہلے ان راتوں کی, ان دنوں کی قدر کرنا ہے. دوسرا, اور پھر ایک چھوٹا سا عمل اللہ رب العزت فرما رہے, ایک وہ بندہ جو قربانی نہیں دینا چاہتا ہے, جو قربانی دینا چاہتا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے. یہ عمل مستحب ہے, یہ فرض نہیں ہے اور نہ واجب ہے جو قربانی دینا چاہ رہا ہوں, بلکہ علماء نے اس کے لیے بھی لکھا ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہے, جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, وہ بھی اپنے جسم کے بال وغیرہ نہ کاٹے, قربانی کے عمل کے بعد اس کو کاٹے. کیوں؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے, قربانی تو اصل جان کی قربانی ہے. ارے اسماعیل علیہ السلام نے قربانی پیش کیا تھا نا, اور کر دیا تھا اپنے حساب سے, تو دونوں باپ بیٹے 100% کامیاب ہو گئے تھے. انہوں نے چھری چلا دیا تھا اور انہوں نے گردن سونپ دیا تھا, مگر اللہ نے چھری چلنے نہیں دیا. تو قربانی تو اصل جان کی قربانی ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں تھوڑے بال کو چھوڑ دو, تھوڑے ناخن کو چھوڑ دو, جسم کے دوسرے چیزوں کو چھوڑ دو. جب قربانی کا عمل پورا ہو جائے تو اپنے یہ میلے ناخن, اپنی یہ بڑھے ہوئے بال, اس کو کاٹ دو. یعنی ایک چھوٹی سی قربانی. اللہ رب العزت اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. شریعت نے مجھے اور آپ کو اتنا آسان اور سہل بنا کر پیش کر دیا. اس کی حکمت یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ حاجیوں سے مشابہت ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سب سے بڑی حکمت یہ ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے. تو ان دنوں میں ناخن بال جو قربانی دینا چاہ رہے ہیں, علی الخصوص ان لوگوں کے لیے جو نہ دینا چاہ رہے ہیں, وہ بھی قربانی کے ان دنوں میں بال اور ناخن وہ نہ تراشیں. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کی قدر کریں اور قربانی کے عمل کو کثرت سے کریں, کم از کم حصے لے لیں. اور وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں, جو ایک سے زیادہ قربانی کر سکتے ہیں, جو شہروں میں بڑے بڑے جانور لاتے ہیں, ارے میرے بھائی شہروں میں بڑے بڑے جانور لانے سے بہتر ہے کہ دیہاتوں میں چند ایسے تنظیموں کا آپ ہاتھ بٹائیں, چند ایسے لوگوں کا آپ ہاتھ بٹائیں جو واقعتاً وہاں کام کر رہے ہوں, بلکہ ان کے ساتھ آپ تعاون کریں. اگر آپ خود پہنچ پا رہے ہیں تنہا چلے جائیں, مگر ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ, کیونکہ دیہاتوں کا جو حال ہے بہت برا ہے. 300 گھر میں 10 گھروں میں قربانی ہوتی ہے. ہم نے خود ایک ایسے آئی لینڈ میں قربانی ذبح کیا جہاں پر ایک گھر میں صرف 900 گرام گوشت ملا. کتنا؟ 900 گرام. 300 گرام ہڈی اور 600 گرام گوشت تول کر تقسیم کیا گیا. اور اس آئی لینڈ میں کوئی قربانی کا عمل اور نہیں ہوتا ہے. پر مکمل 9 جانور ذبح ہوا تھا, جس میں سے 6 ہم لوگوں نے دیا تھا اور 3 کہیں اور باہر سے آیا تھا. 9 جانور اپنے ہاتھوں سے میں نے ذبح کیا. 2021 کی بات کہہ رہا ہوں میں. ابھی بھی وہاں پر 4-5 جانور ہمارے جاتے ہیں. تو جو لوگ 2 لاکھ 3 لاکھ کے جانور لاتے ہیں یا کثیر تعداد میں شہروں میں جانور لاتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا دیہاتوں پر توجہ دیں. حالات وہاں بڑے خراب ہیں, بہت پسماندگی ہے. کوئی یہ نہیں ہے, یہاں شہروں میں تو بٹ جاتا ہے کیونکہ کنیکشن ہے نا, وہ کنیکٹیویٹی سے وہ کٹے ہوئے ہیں, لوگ جانتے بھی نہیں ہیں ان کے بارے میں. تو اسی لیے یہاں پر 3 یا 4 جانور کے بجائے 1-2 جانور ہم وہاں بھی توجہ دے لیں, 1-2 حصے وہاں بھی توجہ دے لیں, تاکہ آپ بھی کھائیں اور غریب بھی کھائیں. قرآن میں اللہ نے کہا اطعموا القانی والمعتر, قربانی کے گوشت کو مالداروں کو بھی کھلاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. باقی قربانی کے مسائل آئندہ جمعہ ذکر کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق